Good evening to my dear friends. This is Philip Asos Solomon from Mission IAS. My dear guys, as per the show motto of the Knowledge Booster, I am providing today economy based questions which is very important for you all, because sometimes or it might have heard whenever this question is being asked to the students that how many financial sectors in India, how many financial regulatory bodies in India. Generally, students, those who are preparing for several types of examinations, competitive examinations, actually they might have occupied their answers as per the three, like Reserve Bank of India, like IRDA, like SEBI. In overall the scenario, whenever we are going through the discussions of the financial regulatory bodies in India, actually we can't say that there are only three financial regulatory bodies in India and only three are conducting and controlling the financial stability in our country. Because whenever we are going through the discussions on the basis of financial regulatory bodies in India, actually there are not only three but five we have to study, because some institutions or some organizations are considered to be the regulatory bodies under, we can say, a statutory body versus a wise parliamentary enactment, and some are being processed by the government of India. The manifesto which has been perceived by the government of India, finally government of India has established several institutions. In this episode we have to study. तो बात होती है कि जिस तरह से हमारे देश के किसी भी स्टूडेंट से पूछ दिया जाए कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली वो तीन बताते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, सेबी होता है, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बाद बोलता है कि भैया इरडा होता है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ को भारत में कंडक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं, ये 3 ही हैं जिसके कारण लोग ये बातों को समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो पार्ट हैं जो हमारे कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज में आते हैं, वो वायस पार्लियामेंट्री एनैक्टमेंट, और कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द रिक्वायरमेंट, व्हेनेवर गवर्नमेंट कैन perceives about that this must be established, so finally what can be the decision can be taken by the government of India, actually it can take place and finally it can be inaugurated. तो इस तरह के कुछ न कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत में उस तरह से एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। तो बात हम करेंगे कि जो यदि फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं, तो नॉर्मली फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन द फील्ड ऑफ। तो भारत में जितनी भी खास तौर पे कह सकते हैं कि आर्थिक जो सिस्टम होती है, आर्थिक जो गतिविधि होती है भारत में, उनको जो रेगुलेट किया जाता है वह सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स के द्वारा किया जाता है, और उसके भिन्न उनके क्षेत्र हैं। जैसे हम कह सकते हैं बैंकिंग है, जैसे कह सकते हैं इंश्योरेंस है, जैसे कह सकते हैं कैपिटल मार्केट, कमोडिटीज़ मार्केट और पेंशन फंड्स। तो दोज आर द सेक्टर्स विच आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड, विच आर कंसिडर्ड टू बी द फाइनेंशियल सेक्टर्स इन आवर कंट्री, या फाइनेंशियल सिस्टम विच कैन बी कंडक्टेड बाय अवर गवर्नमेंट and several types of we can say financial organizations and institutions. तो इस तरह से हमारे भारत में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस जिसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। However, government of India always plays a significant role in controlling the financial system in India, and we can say influence the role of such regulators at least to some extent in our country. Whenever the organization and institution is going to be failed in that system, government can take strict steps regarding that particular institutions and organization how to find out. So this is also manifesto by which we can also know about those institutions which can be the responsible and accountable for that particular view or particular issues which has been perceived, analyzed by the government, and finally government can take place. तो सरकार लेती है। तो इस आधार पे आज हम चर्चा करेंगे कि देयर आर 5 मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, एंड उनमें से हम 3 ऐसे इंस्टीट्यूशन की चर्चा करेंगे जो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज वाया पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट आते हैं, और 2 ऐसे बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिक्वायरमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से उसको इस्टेब्लिश भारत में कर दिए गए। इज इट ओके?
तो इस तरह से हम ओवरऑल 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस की चर्चा करेंगे और उस आधार पे हम भारत के जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल जो सिस्टम को रेगुलेट करने की जो हमारे यहाँ प्रणाली है, सिस्टम्स हैं, वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी इंटरप्रिटेशंस। इज इट ओके? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि हम सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ एन एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में यदि देखा जाए तो भारत में जितनी भी प्रकार के खासतौर बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वे सारे को कंट्रोल जो करने वाला होता है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। दैट्स वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहते हैं, इसको गवर्नमेंट का भी बैंक कहते हैं। यानी जितने भी प्रकार के हमारे पास फाइनेंशियली मॉनेटरी एक्टिविटीज़ होते हैं वो नॉर्मली कंडक्ट और रेगुलेट जो होते हैं वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। Actually, Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 on the recommendation of Hilton Young Commission and after the provisions which has been enacted on as per the Reserve Bank of India Act 1934। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हमने ऐसे पिछला आपको लेक्चर भी दिया था, पिछले लेक्चर में केवल बैंकिंग सिस्टम पे मैंने आपको सब चीज़ बताया था। तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ RBI एक्ट 1934 के तहत। लेकिन सबसे पहले इसकी जो कह सकते हैं रिकमेंडेशन है या भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, इस तरह के जो प्रोविजंस दिए गए थे वो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा दिया गया था। इज इट ओके? और ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम को लेकर के आप बैंक वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको एक एक पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। इज इट ओके? आपको पता होनी चाहिए नाउ when Reserve Bank of India was established in India in 1935, headquartered in कोलकाता in that period। तो जब 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो थी वो कोलकाता में था। लेकिन 1937 इट मूव टू बॉम्बे। 1937 में जो हुआ ये मुख्य रूप से कलकत्ता से बॉम्बे इसको मूव कर दिया गया। और आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि अप्रैल 1947 तक भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वह म्यांमार, जिसको हम प्रीवियसली कहते थे बर्मा के यह भी सेंट्रल बैंक का भी काम करता था। टिल वी कैन से द जापानीज ट्रेडर्स इनग्रेटेड सेवरल एक्टिविटीज इन बर्मा एंड म्यांमार। तो तब तक जब तक कि हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिकतावाद की जो गतिविधि बर्मा में जापानियों के द्वारा चलाए जा रहे थे, 1947 के हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, तब तक भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी म्यांमार के भी सेंट्रल बैंक का काम किया था। इज इट ओके? उसके बाद जून 1948 तक, जून 1948 तक टिल भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काम किया, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया। लेकिन जब उसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक के रूप में जब उसकी इस्टेब्लिश होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को समाप्त कर लेता है पाकिस्तान के साथ। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चलाने के लिए एक सेंट्रल ऑफिस होती है वेयर गवर्नर सिट्स, जहाँ पर गवर्नर जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वहाँ पर बैठते हैं। और हम कह सकते हैं कि एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, और गवर्नर भी बैठते हैं साथ ही साथ, और जो एक्स कह सकते हैं डिप्यूटी गवर्नर होते हैं वो होते हैं। और वहीं पर जितनी भी प्रकार के नीति निर्धारण होती है, पॉलिसीज़ को जो फॉर्मुलेशन किया जाता है वो उसी सेंट्रल ऑफिस में की जाती है। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ऑन्ड, तो हम कह सकते हैं कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्लियर या प्रायर टू 1949, जब हम 1949 से पहले बात करते हैं, बिकॉज 1949 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। तो नेशनलाइजेशन की पहले यदि आप चर्चा करते हैं तो 1949 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी वो भी एक प्राइवेट के हाथों में थी, निजी हाथों में थी, और निजी हाथों के द्वारा इसको चलाया जाता था। और यही भारत की सरकार को उस समय महसूस हुआ कि जो बैंकिंग को जिस मकसद से, जिस मोटो, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो गतिविधि है, चाहे वो हमारा आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसमें कहीं ना कहीं इसकी जो कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन हो रहा था वो कंट्रीब्यूशन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे थे। अंततः सरकार ने इसको 1949 में इसको नेशनलाइज कर देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेट हाथों से अपने हाथों में, यानी पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं भारत सरकार इसको आउंड कर लेती है, अपने हस्तक्षेप में इसको रख लेती है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शंस एक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
तो एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जस्ट आई मेड यू नो, इट इज़ कंसिडर्ड एज द एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ये भारत के मॉनेटरी अथॉरिटी के एपेक्स बॉडी के रूप में इसको हम जानते हैं। एंड इट मेनली रेगुलेट्स द इशूज़ ऑफ द बैंक्स नोट्स। तो जितने भी बैंक होते हैं उनमें जो नोट होता है, नोट का जो इशूइंग होता है, जिसको मिंटिंग बोल सकते हैं, तो इसको कार्य करने के लिए जो एक्टिविटीज़ है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी होती है। आप कह सकते हैं कीपिंग ऑफ रिवेन्यूज विथ अ व्यू टू द सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। भारत में आर्थिक गतिविधि को कैसे स्टेबल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें की जो जिम्मेवारियां होती हैं वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। एंड इन द फाइनली इन द जनरल सेंस वी कैन से इट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन and the operating the currency and credit system of the country, like we can say as per the bank manifesto what we have to know about that, banking system is mainly established to get advantage. Okay, तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम को किस तरह से हमें एडवांटेज करना है, किस तरह से बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने, उसे क्या प्रॉफिट कमानी है और देश की अर्थव्यवस्था में इसको कैसे हम कह सकते हैं कि एक यूनिक जो हमारे पास एडवांटेज होती है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, दोज एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड अंडर दिस एक्टिविटीज़। इज इट ओके? दूसरा हमारा जो होता है वह सेकंड जो होता है वो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसको सेबी कहते हैं। तो सेबी वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाई सेबी एक्ट 1992। तो भारत में सेबी की जो गठन हुआ था सेबी एक्ट 1992 के तहत किया गया था। और एक्चुअली इन द फर्स्ट टाइम वेन एवर वी आर टॉकिंग इन द इनिशियल इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1988। 1988 में ही इसका निर्माण कर दिया गया था। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी बैंकिंग सिस्टम में सारे चीज़ों को चर्चा किया था। और जब इसको 1988 ईस्वी में इसको जब स्थापना किया गया था, इन दैट पीरियड इट वॉज कंसिडर्ड टू बी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो 1988 में जब इसको स्थापना किया गया था उस समय ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में जाना जाता था, एज पर द requirement, as per the necessity whenever government held. And finally these institutions were organized and inaugurated in our country. लेकिन इसमें एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रोविजंस चले, इनैक्टमेंट चले, पार्लियामेंट्री आप कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट इसमें प्रोविजंस लाए गए, एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और एक तरह से कह सकते हैं संसदीय पार्लियामेंट्री के रिकमेंडेशन पे इसको अंततः हम कह सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी का रूप 1992 में दे दिया गया। दैट्स वाई वी कैन से इट बिकेम एन ऑटोनोमस बॉडी इन 1992 और अंततः इसको 1992 में एक ऑटोनोमस बॉडी का रूप दे दिया गया। इसका नॉर्मली काम जो है रिजर्व सेबी का जो भारत में काम है, जैसे आरबीआई का काम है भारत में कौन सा बैंक खुलेगा, उसकी बैंकिंग के क्या एक्टिविटीज़ होगा उसको दर्शाएगा, बैंक की जो भी प्रोसीजर होता है उसको बताएगा, बैंक को कहाँ खोलना है, क्या ऐसे रेगुलेट करना है, ये मतलब ओवरऑल बैंकिंग चीज़ों की यदि हम चर्चा करते हैं तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे एक्टिविटीज़ हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगा। लेकिन यदि हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करते हैं तो सिक्योरिटी मार्केट को किस तरह से हमें रेगुलेट करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस किस तरह के नियम्स एंड कानून उसमें इन्वॉल्व हो सके, दोज एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीटली रेगुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये होता है। और जब 1992 में इसको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में जब इसको स्थापना कर दिया गया, जब ऑटोनोमस बॉडी के रूप में सेवरल पावर वाज आल्सो इन्वेस्टेड, तो इसके साथ भिन्न भिन्न हम कह सकते बहुत सारी शक्तियाँ भी इसके साथ जोड़ दी गई, वेयर गिवन थ्रू द ऑर्डिनेंस, जो एक कह सकते हैं विधेयक के द्वारा इसको शक्तिशाली बनाया गया, एम्पावरमेंट बनाया गया। एंड सिंस देन और तब से हम कह सकते हैं कि इट रेगुलेट्स द मार्केट थ्रू इट्स इंडिपेंडेंट पावर्स। तो उस समय से कह सकते हैं एक स्वतंत्र रूप से अपनी एक्टिविटीज़ को चला रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है और सिक्योरिटीज मार्केट को जो भी नीड होती है एज पर द चेंजिंग ऑफ द पीरियड, ट्रांसफॉर्मेशन और समथिंग, ओके। तो इस तरह के जब भी उसको ऐसा रियलाइज होता है तो कभी न कभी हम कह सकते हैं कि सेबी जो होता है उस तरह की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने में समर्थ होता है, कार्य को करता है। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है इरडा, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एक्चुअली इरडा, सबसे पहले हम जानेंगे कि इरडा जो होती है, इरडा इज़ अ नेशनल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इरडा हमारी भारत सरकार की एक राष्ट्रीय कह सकते हैं निकाय है, एक एजेंसी है एंड इट इज़ हेड क्वार्टर्ड इन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एंड इट वाज एक्चुअली फॉर्म बाय एन एक्ट, इसको भी एक
एक्ट, एक अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोन एज इरडा एक्ट 1999। तो इरडा एक्ट 1999 के तहत इरडा को सबसे पहले कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोविजंस या एक्ट के तहत भारत में इरडा का भी गठन किया गया। और इसको जब गठन किया गया तो यू मस्ट नो अबाउट इन 2002, अंततः 2002 में हम देख सकते हैं कि इट वाज आल्सो एमेंडेड। 2002 में भी इसमें एक सुधार किया गया भी, और सुधार करके इसको इनकॉर्पोरेट सम कह सकते हैं इंगेजिंग एंड अमोजिंग रिक्वायरमेंट के साथ इसको जोड़ दिया। ये मतलब कह सकते हैं कि इसको एक पावरफुल बनाने की कोशिश की गई, एम्पावरमेंट करने की कोशिश की गई कि इसको और क्या क्या क्षेत्र तक, कहाँ तक इसको फैलाया जाए। ये सारी एक्टिविटीज़ को 2002 में इसके साथ संलग्न कर दिया गया। हाँ, इरडा के कुछ आपको मिशंस भी याद करने होंगे। सबसे पहला यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका सबसे पहला इसका है कि नॉर्मली इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द interest of the policy makers, a policy what we can say holders। तो जितने भी कह सकते हैं कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी प्रकार के एक्टिविटी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंश्योरेंस हमारे पास दो, पिछले भी हम बताया था कि LIC और GIC को हमने पहले बात किया था। अब ऐसे हमारे डिवीजन में टूट करके 3 और 4 हो गए। तो चाहे LIC हो या GIC हो या भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी हमारे पास इंश्योरेंस कंपनियाँ हमारे देश में हैं, तो ये सारे जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, दोज इंश्योरेंस कंपनियाँ आर कंप्लीट एंड कम्प्लीटली रेगुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इरडा। और उसके साथ भी एक प्रोविजन है, जैसे मान लिया जाए हम लोग LIC में ही देखते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो इसमें यदि किसी भी प्रकार के जो मान लिया जाए इंश्योरर हैं जो बीमा कर रहे हैं, एक बीमा करता जो होते हैं, ये दोनों के बीच में यदि किसी भी प्रकार के मान लिया डिस्प्यूट आ जाती, कंट्रोवर्सी हो जाती, तो इसकी भी जो निपटारा करेगा वो कौन कर रहा है? इरडा ही करेगी। जितने भी प्रकार के हम कह सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी जो होल्डर्स हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी आप कह सकते हैं जो एक अपने सम्मान है, उनकी जो अपनी एक अधिकार है, राइट्स हैं, वे सारे राइट्स को प्रोटेक्शन कौन देगा? तो इरडा देगा। ये इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है। एंड मेनली इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट and promote and we can say ensure orderly growth of insurance industry in our country whenever it can be felt that in this sector, in this area, insurance company must be implemented and existed in the part it can be implemented। तो ये आपको इस तरह की कमियां को भी ढूंढती है, उसके बाद ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को वो वहाँ पर इस्टेब्लिश करने में मदद भी करता है। In that criteria, we can see for the matters connected there with an incidental, we can see incidental thereto। तो उस तरह के जितने भी कह सकते हैं कि घटना दुर्घटना से रिलेटेड होते हैं, मानव जीवन के साथ होते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ के साथ होते हैं, तो LIC के अंतर्गत जाएगा। उसके अदर्स जितने भी इंश्योरेंस हो जाएंगे, लाइक जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का आप इंश्योरेंस कराते हो, घर का इंश्योरेंस कराते हैं, दुकान का इंश्योरेंस कराते हो, GIC के अंतर्गत आप करा। तो इसके में भी जो आपका एक अधिकार होता है, राइट्स होता है, उसको कहीं एक्सप्लॉइट न किया जाए, शोषण नहीं किया जाए। तो उस तरह के जो आपको एम्पावरमेंट जो पावर देती है, वह पावर देने का काम कौन करता है? हमारा इरडा करता है। तो ये तीनों का तीनों जो अभी तक हमने जो चर्चा की, 3 इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडर्ड टू बी द स्टैट्यूटरी बॉडीज वायज पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट। तो तीनों का तीनों जो था हमारा पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट के तहत वायस कह सकते हैं कि हमारे पास ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज थे। कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोविजंस या के पार्ट में आ जाते हैं, और उस आधार पे हम सबसे पहला देखेंगे FMC। FMC का मतलब होता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ठीक है, सबसे पहला मतलब इसका मतलब होता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अब बात होता है कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन क्या होता है। तो माय डियर गाइस, सबसे पहले आप याद रखिए कि फॉरवर्ड मार्केट जो कमीशन FMC जो होती है, एक्चुअली यह भी हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1953। इसको 1953 में इसकी स्थापना की गई थी अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1952 के तहत FMC का गठन किया गया था, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, जिसका हेडक्वार्टर हमारा बॉम्बे में है। अब बात होती है कि इसकी काम क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो डियर गाइज, ये जो होती है यह भी एक रेगुलेटिंग आप कह सकते हैं अथॉरिटी होती है, विच इज़ ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्य रूप से काम जो होता है कि जो भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स या फूड और पब्लिक जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक डिपार्टमेंट है,
उसके अंतर्गत जितनी भी प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कैसे रेगुलेट करने, वो रेगुलेशन करने के लिए इसमें एक अथॉरिटी को दे दिया गया जिसको ये जांच पड़ताल करता है, देख रेख करता है कि कहीं किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ को गलती नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं तो समस्या नहीं हो रही है। तो दोज एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीटली जस्टिफाइड बाई FMC। एक्चुअली आपको इसके अलावा भी कुछ याद रखने होगा कि एक्चुअली यदि हम FMC की बात करते हैं तो FMC, दिस कमीशन, वी कैन से दिस कमीशन ऑल्सो अलाउज द कमोडिटी ट्रेडिंग इन 22 एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में 22 एक्सचेंज जो हैं उसमें एक कमोडिटी ट्रेडिंग को भी कहीं न कहीं अलाउज करता है, इन विच या आउट ऑफ विच 3 आर नेशनल लेवल, उनमें से 3 जो है वो हमारा राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारा FMC का निर्माण किया गया। 5वां हमारा जो लास्ट हो जाता है वह हमारा होता है PFRDA। PFRDA नॉर्मली स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड PFRDA। PFRDA स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिस इज कंसिडर्ड अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। यह एक्चुअली जो FM होता है हमारा देश के जो वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 23 अगस्त 2003। इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 23 अप्रैल 2003 को इसको गठन किया गया था। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेटेड PFRDA ऑन 10 अक्टूबर 2003। और अंततः भारत की सरकार जो थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, वह PFRDA को 10 अक्टूबर 2003 को मैंडेटरी या कह सकते हैं मैंडेट किया। इसके साथ कुछ कह सकते हैं एक्टिविटीज़ को एज नेसेसरी एज फूड के रूप में उसको इन्वॉल्व भी कर दिया। और वह था कि टू एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर द पेंशन सेक्टर इन इंडिया, कि भैया तुम्हारा काम है कि हमारे देश के अंतर्गत जितने भी पेंशन सिक्योरिटीज़ हैं वो सारे चीज़ों को आप रेगुलेट करो। वाई? टू डेवलप रेगुलेशन पेंशन सेक्टर इन इंडिया, जिसके द्वारा भारत में जितने भी प्रकार के पेंशन सेक्टर्स हैं उसको कैसे डेवलपमेंट करनी है, कैसे उसको रेगुलेट करनी है। ये दोज एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीटली बेस्ड टू द PFRD बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003। और अंततः 2003 में भारत सरकार के द्वारा इसमें कह सकते हैं लॉन्च कर दिए गए और उसको इस तरह से एम्पावर्ड कर दिए गए। तो ओवरऑल आई डिस्कस ऑल टॉक्स अबाउट financial system in India. There are 5 financial system. Now you might have heard whatever I made you understand. तो इस पूरे एपिसोड से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इस एपिसोड के द्वारा अब आपकी जो माइंड में एक जो थोड़ा सा आपको जो डाउट चल रहा होगा कि नहीं फाइनेंस सेक्टर तो हमारे पास 3 ही थे, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोई प्रोविजन है एज पर द नेसेसिटी व्हेन एवर गवर्नमेंट फील्स अबाउट दैट, और इसको जब सरकार गठन कर देती है। तो वी हैव टू स्टडी बीइंग एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विस में डिफरेंट एग्जामिनेशन, ओके, वी मस्ट नो अबाउट दैट which types of interpretations and intermediaries bodies we have to study and consider under these schemes, under these institutions or organizations। तो ये हमें स्टडी करना होगा। तो इसके साथ आज का जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ इन इंडिया थी, इस चीज़ों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर दिया। अगले एपिसोड में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।